1946 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਰਵਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਕਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਰਮਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਚਾਲ ਚਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 1885 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਬੜੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਝਾੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲਾਲ, ਬਾਲ ਔਰ ਪਾਲ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਔਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿ 1905 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਗਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1906 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗਾ ਖਾਨ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ। ਆਗਾ ਖਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। और लामा इकबाल जिन्हें लिखा सी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी उस लहर दे विच बह गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फिरका परस्ती, सांप्रदायिक पागलपन सब तो ज्यादा खतरनाक है। इहदी वजह नाल हिंदुस्तान का बंटवारा होया, और कोई कारण नहीं सी। अंग्रेज जिन्ना मर्जी जोर ला लेंदे, जे हिंदू और मुसलमान आपस च प्यार नाल रहिंदे इस मुल्क का बंटवारा नहीं सी होना। अल्टीमेटली जदों बंटवारा किया गया, अफरा तफरी च गल सारी हुई। इन्हां नूं पता होना चाहिए सी कि जिसले बंटवारा होएगा लोग आपे च लड़नगे, कतलो गारत होएगी, खून खराबा होएगा, किसी ने इस गल की परवाह नहीं की। और इस दा मुल्क दा इत्थे पंजाब च इधर डिवीजन हुई, और राजस्थान वाले पासे उधरों बंगाल जिहड़ा सी उहदी डिवीजन हुई। इस कतलो गारत दे विच घलूघारा जिन्हों कहने आ 10 लाख लोग जिहड़े सन मारे गए। 1.5 करोड़ आदमी ने हिजरत की, पलायन की, इधरों उधर गए। बहुत बुरा हाल उस वेले लोगों का होया।
दुनिया जदों दी बनी है एडा वड्डा पलायन किसी जगह पे नहीं होया ते ना ही इन्हें बंदे इन्हें थोड़े जिहा दिनां दे विच मार दिते गए। तो मैं समझना कि जिथे मुल्क तरक्की करता है अगे वधदा है उत्थे हर मजहब के लोग नूं जिथे पूरे अधिकार असीं देने आ, ये जिहड़े फिरका परस्ती है सांप्रदायिकता है ये सब तो बड़ा एक खतरनाक पहलू है जिसनूं हर हालत च देश चों खत्म करना चाहिए। ते जे फिरका परस्ती की वजह नाल सांप्रदायिकता की वजह नाल मुल्क अगे डिवाइड होया है ते जे ओही खेल असीं फिर खेलांगे ते परिणाम ओही निकलेगा, कोई परिणाम और चंगा नहीं निकल सकेगा। इस करके देश के हित विच है कि सारे लोग मिल के चलन, देश साडा सदियां तक सलामत रहे और देश आर्थिक प्रगति के पथ के उत्ते चलता रहे, यही साडी कामना है। पूर्व डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर दरबारी लाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर हद हो गई, 75 साल हो गए आज़ादी को, बंटवारे में बट गया पंजाब बटा, देश बटा, लेकिन आज भी दंगे वही हो रहे हैं मजहब के नाम पे जो बंटवारे का कारण बने थे। तो उन दंगों के पीछे जितने लोग हैं उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला क्यों नहीं चलता जनाब? देखिए, गवर्नमेंट को नए कानून को अस्तित्व में लाना पड़ेगा। जितने भी ये इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है वो अपने अपने धर्म की बात करते हैं और दूसरे धर्म के साथ जो प्यार मोहब्बत से रहने का पाठ सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा रहे। और हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत तेजी से फैला है आज़ादी के बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक जो नई एजुकेशनल पॉलिसी उन्होंने बनाई है उसमें ये ऐड करना चाहिए, किसी भी स्कूल में सांप्रदायिक जो पढ़ाई है ये नहीं होनी चाहिए। लोगों को एक लक्ष्य उनका होना चाहिए कि मेरा देश हिंदुस्तान में, मैंने इसके लिए काम करना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो या किसी और छोटे मजहब से उसका संबंध हो, वो सारे हमारे देश के नागरिक हैं और हमने आपस में मोहब्बत से जिंदगी बसर करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मगर क्योंकि वोट मिलता है, जब वोट मिलता है धर्म के नाम पर तो पॉलिटिकल आदमी जो है उसका फायदा उठाते हैं। जात पात के नाम पर वोट मिलता है उसका फायदा उठाते हैं। अब एक जात वाले जो है उनको 4 नौकरियां दे देंगी, उनकी आबादी है मान लो करोड़, तो मेरी समझ में नहीं आता कि 4 आदमियों को नौकरी मिल गई तो बाकी जो करोड़ आदमी बैठा हुआ उनको क्या फायदा हुआ। इसलिए पॉलिसी सभी लोगों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। लोगों को भी जात पात से बाहर निकलना चाहिए। जात पात की वजह से हम कितने साल सदियों तक हम गुलाम रहे। अब सांप्रदायिकता का शिकार हम अंग्रेजों के जमाने में हो गए, उसका नुकसान हमने उठाया। अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा तो ये याद रखना इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है जिससे नुकसान होगा आगे। सर बिल्कुल नुकसान होता है। जैसे कि हम कई देशों की बात करें, कई देशों के अभी बाद में टुकड़े टुकड़े हुए हैं। अगर हम अपने अखंड भारत की बात करें तो हमारे टुकड़े ही हुए हैं। हमारी सीमाएं कहाँ तक थी और पूरा हमारा अखंड भारत था, महाराजा रंजीत सिंह का राज था। लेकिन ये बंटवारे की जो बांट हुई ये धर्म के नाम पे हुई, मजहब के नाम पे हुई। तो धर्म और मजहब के नाम के झगड़े आज भी हो रहे हैं, वो तो वही ये सबसे पहले मुगलों के जमाने में करीब शांति रही है, थोड़े बहुत समय छोड़ के 200-250 साल बड़े आराम से लोग आपस में मिल के रहते रहे। इंग्लैंड के अंदर एक अंग्रेज था मिस्टर एक्टन, उसने एक नई सोच पैदा की। उसने ये कहा कि 2 नेशन थ्योरी, उसने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। 2 नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान 2 नेशन है, ये 2 कम्युनिटीज नहीं है। पहले 1885 में कांग्रेस जब बनी तो सर सैयद अहमद खान ने ये कहा कि ये ठीक है, मगर 2 साल के बाद 87 में उन्होंने कहा कि जो 2 नेशन थ्योरी है वो ठीक है। यानी उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ के वो 2 नेशन थ्योरी के पीछे हो गए। इसी 2 नेशन थ्योरी को आगे आके मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तेमाल किया, अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किया, बाकी जो मुसलमान लीडर थे उन्होंने शुरू किया। अगर मुसलमानों ने चालू किया तो हिंदू जो लीडर थे वो
हिंदू महासभा के, वो भी वही काम करने लगे। तो नेचुरली नफरत से नफरत बढ़ती है। नफरत कोई प्यार मोहब्बत पैदा नहीं करती। प्यार मोहब्बत को नफरत को छोड़ने से होता है। दुनिया के मुल्क जो है, अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, वहाँ हर तरह के मजहब के लोग रहते हैं, तो वहाँ शांति से काम करते हैं। तो हिंदुस्तान में इनको क्या तकलीफ है? मुश्किल सिर्फ ये है सफर साहब कि पॉलिटिकल आदमी वोट लेने के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो धर्म का आसरा लेती है, जात पात का आसरा लेती है, उससे उनको वोट बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। और देश के अंदर जो पहले हुआ है, अगर नहीं उसको रोकेंगे तो जो अगर पहले कोई जहर खा के मर गया है तो दोबारा अगर वो जहर खाएगा वो बच नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता। सर 50 सालों में जापान बुलंदियों पे चढ़ गया, हम 75 सालों में अभी यही वहीं पे टिके हैं कि ये हिंदू ये मुसलमान, बस ये कांग्रेस ये बीजेपी या अकाली, हम सियासत में बटे, हम देश प्रेम, हम देशभक्त हैं क्या? हम देश को मानते हैं क्या? हम धरती को माँ मानते हैं? अगर माँ मानते हैं तो फिर गद्दार क्यों? हम हमारे ही बीच के ही लोग तो गलत कामों में करते हैं, आतंकवादी बनते हैं, गैंगस्टर बनते हैं। तो हम कानून कितना मानते हैं? चलिए कानून कितना भी हम मानते हैं, हम सभी जानते हैं। सर ये बताइएगा कुछ और यादें, जब उस समय मारकाट हो गई, 22 नंबर फाटक खूनी रंग, ट्रेनें भर के आ गई, कुछ तो आपको याद होगा? कुछ आपके वो ऐसा है कि मैंने जो गाड़ी बन्नू कुहाट से इधर लाहौर की तरफ आई, जब हम गुजरात में थे तो एक आदमी को मैंने कैंप में देखा जिसकी टांग कटी हुई थी। वो गाड़ी जब आई तो उस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था कि गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। जितने भी लोग गाड़ी में थे सब के सब कत्ल कर दिए गए, जो भाग सके निकल गए। और जब इधर अमृतसर में पहुंची तो एक सरदार जो स्टेशन मास्टर था जिनी, उसने जाके देखा गाड़ी में से निकल ही कोई नहीं रहा, हुआ क्या है। जब वो बिल्कुल पास गया तो उसने देखा गाड़ी के अंदर खून से भरी हुई थी और किसी की टांग, किसी का सिर कटा हुआ है, तो गाड़ी से बाहर निकल ही कोई नहीं रहा। अब देखिए, अगर एक तरफ गलती होती है तो दूसरे आदमी भी गुस्से में दूसरी गलती कर देता है। तो दो गलतियों से वो करने से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर एक ने गलत किया तो दूसरा भी गलत करे। मगर पुतलीगढ़ में इन्होंने भी इधर से गाड़ी काटी और लिख दिया कि प्रेजेंट फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह कत्लो गारत जो थी वो सबसे ज्यादा पंजाब में हुई। आप अंदाजा लगाइए कि 24% हिंदुस्तानी 47 में जो हिंदू और सिख थे वो पाकिस्तान में रहे, और यहाँ पर जो थे वो तादाद बहुत कम थी, 4.25 करोड़ के करीब थी। तो पाकिस्तान के अंदर आज उनकी तादाद सिर्फ 1.5% के करीब रह गई है। तो बाकी गए किधर? इसका मतलब है या तो उनको सांप्रदायिकता खा गई, या वो मुसलमान हो गए, या वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। देखो, पाकिस्तान में जो होता है उसका असर हिंदुस्तान में पड़ता है, जो हिंदुस्तान में होता है उसका असर पाकिस्तान और बांग्लादेश में पड़ता है। तो तीनों को मिलकर एक ऐसी नीति का निर्माण करना चाहिए कि सब खुशहाल हो, शांति से रहे, आपस में भाईचारा हो, सारे व्यापार करें, एक दूसरी जगह पर जाए। तो अपने आप ये अमेरिका कनाडा की तरह सारा यूरोप अब इकट्ठा चलता है। यूरोप वाले 100 साल लड़ाई लड़ते रहे, अल्टीमेटली लड़ाई उनको बंद करनी पड़ी। क्यों? ये जो सांप्रदायिकता का जहर है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, कोविड से खतरनाक है, कैंसर से ज्यादा खतरनाक, दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी से भी ज्यादा डेंजरस है। इसको पहले रोकना चाहिए। अच्छा सर, हम अपने दर्शकों को आपके बारे में बताएं, आप कितने बार विधायक रहे और पंजाब की तरफ से आपने कौन से, एक तो पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रहे और शिक्षा मंत्री का भी आपने पदभार संभाला थोड़ी देर तक। मैं 3 बार विधायक रहा हूँ, फिर मैं डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, 8-9 महीने के लिए स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा हूँ। अपने दौरान में मैंने सबसे पहले रेसलिंग स्टेडियम बनाया, जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा रेसलिंग स्टेडियम है, क्योंकि बच्चों को नशे से छुड़ाने के लिए मैंने ये काम किया और हमारे बच्चे ओलंपिक में भी खेल के आए। फिर मैंने वहाँ पर एक योग आश्रम की जमीन उनको मुहैया करवाई जिस पर आज भी लोग जाते हैं। वहाँ पटेल लाइब्रेरी मैंने बनवाई, 6-7 बाल्मीकि कम्युनिटी के धर्मशाला बनवाई, इतनी ही रविदास कम्युनिटी के लिए बनाई, प्रजापत बनाई के लिए गए, रोड बंस हाल जो थे उनकी मरम्मत के लिए 5-5, 10 लाख रुपया दिया।
यहाँ तक कि हिंदू कॉलेज 1905 का था, उनको 25 लाख रुपया दिया छतें बदलने के लिए। और आपका काम तो पूरा शहर बोलता है, लेकिन देश में एक शिक्षा और आरक्षण खत्म होने की आपने वकालत की है बड़ी जोरों से। मैंने आरक्षण की बात नहीं की। आरक्षण मतलब आपने देखिए, आरक्षण आपने ये कहा है कि जैसे हम एक कम्युनिटी को हम 4-4 नौकरियां देते हैं, तो कहीं ना कहीं होनहार को नौकरी मिले, मेरिट के आधार पर मिले, ये बात आप कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ मेरिट चाहिए, मगर देखिए जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसका कोई साधन नहीं है, उसके लिए सरकार साधन मुहैया करे, उसको एजुकेशन फ्री बच्चों को दे और उनको IAS IPS के लिए भी तैयारी करवाए। अब लंबा समय हो गया है। अब देखिए इस रिजर्वेशन की वजह से अल्टीमेटली मुल्क का बंटवारा हुआ, तो सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है। आगे से काफी फर्क पड़ा है, जो दूसरे लोग हैं वो भी अब जनरल कैटेगरी में जाके पास हो रहे हैं, ये तो नहीं है सारे रिजर्वेशन में ही जा रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो देश की बात होगी। हम अखंड भारत की बात करें, नवाज शरीफ का परिवार यहाँ से जाता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है, मनमोहन सिंह का परिवार पाकिस्तान से आता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये दोनों एक फिराक है। इसके और भी आपके पास तो पूरा इतिहास है, कंठस्थ है, थोड़ा सा मैं ऐसी हस्तियों के बारे में बता दें। जैसे मोहम्मद रफी तो साझा है, भगत सिंह साझा है, बाकी कई ऐसी हस्तियां होगी सर जो इधर से। ऐसा है कि लियाकत अली खान जो पीरजादा था, वो पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना, वो करनाल का रहने वाला था। अच्छा, और हिंदुस्तान के अंदर वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे 1946 में। एक तो वो था, वो हिंदुस्तान से गया और प्राइम मिनिस्टर वहां बना। इसी तरह परवेज मुशर्रफ है, परवेज मुशर्रफ दिल्ली में पैदा हुआ, पाकिस्तान में गया और वो प्रेसिडेंट बना। पहले वो बना उसका फौज का हेड और फिर प्रेसिडेंट बना। जियो लाके जो है वो जलंधर का रहने वाला था, वो भी जाके वहाँ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना। इसी तरह ये है। अब जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है परवेज इलाही जो है, अब वो मेरे ही गांव से ही चुनाव लड़ता है और उसी मदरसे से उसने एजुकेशन हासिल की जिसमें मैंने की। वो मुझसे छोटा है 3-4 साल। अच्छा, तो आपका परिवार भी पाकिस्तान से आया सर? मेरा पाकिस्तान से। हम चनाब दरिया के किनारे गुजरात में छोटा सा हमारा गांव था, 100-125 घर था दरिया के किनारे। आपने सोनी महिवाल का नाम सुना है? तो सोनी का अगला गांव जो था वो हमारा गांव था। यानी चारों तरफ वो जंगल थे, 3 तरफ, और एक तरफ वो दरिया बहता था। तो हम भी उधर से आए। तो बड़े आदमी पाकिस्तान गए, वहां से इधर आए। कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, जैसे कई खानदान ऐसे हैं जो उधर से आए हैं, जैसे तमाम आपको तो होंगे याद। सारे ही है, कपूर खानदान सारा उधर से आया। ये दिलीप कुमार यूनुस खान जो था वो भी पेशावर का है। फिर ओम प्रकाश था, वो भी पेशावर का था। जो वो ओम प्रकाश लाहौर का था, और प्राण नाथ जो था वो भी लाहौर का था। और बड़े आदमी थे जो उधर से आए थे। अच्छा, खालसा कॉलेज उस समय था जब अखंड भारत था, उसके बाद में फिर वहीं पे शरणार्थियों का रिफ्यूजी कैंप वगैरह लगे, तो आपका परिवार भी रिफ्यूजी कैंप में रहा क्या? नहीं, हम वहाँ थोड़े समय रहे, गुजरांवाले में रिफ्यूजी कैंप में। अच्छा। फिर वहाँ से फौज के ट्रक में बैठ के हमें हाल बाजार के बाहर उतार दिया गया था। अच्छा सर, पल पल मौत आंखों में नाचते आपने देखा? हम देखिए 13 अगस्त को हम अपने परिवार में, एक संभ्रांत परिवार था हमारा, 3-4 जो अच्छे खाते पीते थे, मगर 16 अगस्त तक हम यहाँ अमृतसर में सबसे गरीब परिवार बन के रह गए। हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई कपड़ा सिर्फ जो तन पे पहने हुए हैं, औरतों के भी मर्दों के भी, और कोई कईयों के पाँव में जूती भी नहीं थी। मगर सब यहाँ आकर के मेहनत की। यहाँ के लोग बड़े लिबरल थे, बड़े अच्छे थे, उन्होंने एडजस्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता हम सब लोगों ने काम करके अपनी अपनी पोजीशन भी बनाई और लोगों की खिदमत को भी सर अंजाम दिया। सर कभी जाना हुआ बंटवारे के बाद अपने? गया हूँ जी मैं। अच्छा। मैं 3 बार गया हूँ। एक बार तो मुझे गवर्नमेंट पंजाब ने भेजा था जब गुरु नानक देव जी के शहर ननकाना साहब में सोने की पालकी लेके गया था मैं। एक बार मैं MLO को लेके गया था, कटास राज का एरिया,
लाहौर में भी और पेशावर भी से इस्लामाबाद दिखा के लाया था। तीसरी बार फिर परवेज इलाही का मन था कि तुम आओ और गांव में चले जाओ। फिर मैं अपने दोनों बच्चे लेकर के अपने गांव गया था, गोले की, अपने मदरसे भी गया था, अपनी हवेली में भी गया था, अपने घर भी होके आया हूँ। 3 बार गया हूँ मैं इन 2002 से 7 तक। सर, सरहद पर समझौता क्यों नहीं बंद है? सरहद पर समझौता एक्सप्रेस जो है वो बंद है काफी दिनों से, व्यापार भी चल रहा है। तो सरहद अगर हम दोनों नियत से ठीक हो जाएं तो क्या दो पड़ोसी अच्छे दोस्त नहीं होते? ये तो बच्चा है, बाप, हम तो उसके रिश्ते में बाप लगते हैं ना पाकिस्तान के। देखिए बात ये है कि ये जो मुसलमान है, एक बात समझ लो कि ये बाहर से नहीं आए, ना तो ये अरब से है, ना ये तुर्क है, ना ये किर्गिस्तानी है, ना उज़्बेकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है जी। हिंदुस्तान में इनके पुरखे थे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ लोगों ने ईसाइयत कबूल कर ली, अब आर्य समाज, हिंदुओं में भी कोई आर्य समाजी बन गया। इस तरह चलता रहता है। बुद्धिज्म इसमें पैदा हुआ, जैनिज्म पैदा हुआ, सिखिज्म पैदा हुआ। तो सनातन जो धर्म संस्कृति है वो बड़ी विशाल है। अब सवाल ये है कि दोनों मुल्कों की सरकारें जो है इनको मिलकर के हल निकालना चाहिए। देखिए, आप दोस्त बदल सकते हैं जीवन में, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, किसी कीमत पे नहीं बदल सकते। तो पड़ोसियों के साथ हमेशा लड़ाई ना तो पाकिस्तान को सूट करती है, ना हमको सूट करती है। अगर हम दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई तीसरा देश इसका निजायज फायदा उठाएगा। आप देखना, जो चीन उसमें इंटरफियर कर रहा है, वो जगह हमारी है, पाकिस्तान वाले उसको दे के अपना रुपया लेना चाहते हैं। तो नेचुरली जब दो आपस में लड़ेंगे तो तीसरे को फायदा होगा। बिल्लियां लड़ेंगी तो बंदर खाएगा ना। सर, ऐसा बिल्लियां लड़ेंगे, पर अब तो हम पावर में हैं। अगर भारत अपना अखंड भारत बनाना चाहे, पाकिस्तान पे कब्जा करके पाकिस्तान ये तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए और अगर मोहब्बत से हम एक हो जाएं तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, किसी को साथ मिलाना या अटैक करके साथ मिलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना इसका कोई फायदा है। अगर पड़ोसी प्यार से आपस में रहना सीख जाएं तो मैं समझता हूँ ये खुदा की सबसे बड़ी गनीमत है। चलिए, बहुत बड़ी बात है, आपने प्यार की बात की और हम आपसे बात कर रहे थे। और हमारा ग्रुप है PM हाउस और MMM मीडिया ग्रुप, और हम समर संवाद, डेली संवाद और इसके साथ साथ लाइव भारत न्यूज़ चैनल के तहत आपसे बात कर रहा था। आपकी ये इंटरव्यू स्पेशल, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जवाहरीलाल जी। थैंक यू जी।